Hello dear student, how are you? I am Arvindar. Now welcome to you in Kohu International online platform. Today we have to discuss application of dimensions. Okay, so first of all, in application of dimension, first of all we discuss the principle of homogeneity. Okay, so today we have to discuss application of dimensions. Application of dimensions. Okay, so in application of dimensions, first of all we discuss the principle of homogeneity. Principle of homogeneity. So according to this principle, by the principle of homogeneity, we can say that according to this principle, in dimension only the dimensionally same quantities can be added or subtracted. That is, the dimension of each and every term in LHS is equal to the dimension of each and every term in RHS. तो क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल in dimension, according to this principle in dimension, according to this principle in dimension, only the dimensionally same quantities can be added. According to this principle in dimension, only the dimensionally same quantities, only the dimensionally same quantities can be added. Only the dimensionally same quantity can be added. Only the dimensionally same quantity can be added or subtracted. Only the dimensionally same quantity can be added or subtracted. That is the dimension of each and every term in LHS subtracted. That is the dimension of each and every term, dimension of each and every term, that is the dimension of each and every term in LHS, each and every term in LHS is equal to dimension of each and every term in RHS is equal to dimension of each and every term, dimension of each and every term in RHS, each and every term in RHS. ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. जैसे हम एग्जाम्पल से समझें इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल in dimension only the dimensionally same quantities can be added or subtracted. That is, the dimension of each and every term in LHS is equal to dimension of each and every term in RHS. Like we have to take an example. So by the third equation of motion we know that v square is equal to u square plus 2as. So when we applied the principle of homogeneity, then the dimension of v square should be equal to the dimension of u square. This is the principle of homogeneity. क्या कहता है, in dimension only the dimensionally same quantities can be added or subtracted. तो यहाँ पे आपने u square को किसके साथ ऐड किया है, 2as के साथ ऐड किया है. इसका मतलब है कि जो u square की डायमेंशन होगी, वो 2as के डायमेंशन के इक्वल होगी. That is, we can say that the dimension of u square should be equal to the dimension of 2as. u square की जो डायमेंशन है वो 2as के डायमेंशन के इक्वल होगी. एंड द डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन LHS में जो लिखा है v स्क्वायर, इसकी जो डायमेंशन है
जो वी स्क्वायर लिखा है इसकी जो डायमेंशन है वो यू स्क्वायर के इक्वल होगी, एंड ऑल्सो द डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2as। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बात समझ आ गई कि डायमेंशनल में डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दैट इज द डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन RHS। ठीक है, जैसे अब हम इसके फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर 1, पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 1 क्या है ये? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ given physical relation, to check the correctness of given physical relation। जो भी एक फिजिकल रिलेशन दिया है आपको उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए, तो क्या कहा? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। जो भी कोई फिजिकल रिलेशन है हमें क्या करना है? उसकी करेक्टनेस को चेक करना है। ठीक है, किसकी हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से गिवन फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस चेक करनी है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है क्या? द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन is given by s equal to ut plus half at square, s equal to ut plus half at square। ठीक है, proof that the given physical relation is dimensionally correct, proof that the given physical relation is dimensionally correct, given physical relation is dimensionally correct। तो आपको ये बताना है कि जो गिवन फिजिकल रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, ये प्रूफ करके बताना है। वेयर सिंबल्स की बात करें तो वेयर s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, s is what? s is displacement, u equal to initial velocity, u equal to what? Initial velocity। ठीक है, a equal to acceleration and t equal to टाइम। t जो है वो क्या है? टाइम है। तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आप सबकी पहले डायमेंशन नोट करेंगे। सो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s। क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s की जो डायमेंशन होगी, डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी? l। डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज l, और l को आप क्या लिख सकते हैं? m0 l t0। ठीक है, फिर बात करते हैं डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u। तो हमने लिखा डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u। जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है
उसकी डायमेंशन क्या होगी, तो वो बनेगी आपकी क्या, एल टी माइनस वन। दैट इज हम इसको लिख पाएंगे m0 एल टी माइनस वन। ये इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन a। क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी एल टी माइनस टू। मास इसमें इंक्लूड नहीं है तो हम लिखेंगे m0 एल टी माइनस टू। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट, टाइम। तो डायमेंशन ऑफ टाइम t, डायमेंशन ऑफ टाइम स्मॉल t। टाइम की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, तो डायमेंशन ऑफ टाइम स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T। दैट इज आप क्या लिख सकते हो इसको, m0 L0 t। नाउ बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, इसमें हमने क्या लिखा, एस इक्वल टू यू प्लस ए टी हाफ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो वी कैन से दैट की डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, यू टी के इक्वल होनी चाहिए, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी। ठीक है, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ यू टी। सो आप बताएं एस की डायमेंशन क्या है, एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप डायमेंशन में क्या लिखते हैं, एल, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन, और टाइम को क्या लिखेंगे, t। अब यहाँ पे सॉल्यूशन आप करेंगे तो ये t माइनस वन से ये t कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू एल। दैट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ यू टी। ठीक है, ये प्रूफ कर लिया। फिर नेक्स्ट हम इसमें क्या लिखेंगे, नेक्स्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस की जो डायमेंशन है वो हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी। तो फटाफट देखें कि एस की जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए। सो डायमेंशन ऑफ एस इज एल एंड द डायमेंशन ऑफ 1/2। तो देखिए जब भी हम डायमेंशन बनाएंगे तो एनी नंबर, कोई भी प्योर नंबर हो, जैसे 1/2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -5, एनी नंबर, इट इज़ डायमेंशनलेस। कोई भी आपको लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया log x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया e की पावर x, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लाइक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एक्सेट्रा। दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो इनको हम क्या है, कभी भी इनकी डायमेंशंस नहीं बनाएंगे, ये दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ओके, सो नाउ first of all we did 1/2 is dimensionless. So dimension of a that is acceleration. So dimension of acceleration is lt minus 2 and t square. तो dimension of time तो t square. Now यहाँ पे क्या होगा, t minus 2 से ये cancel हो जाएगा, that is dimension of l is equal to dimension of displacement is equal to l and dimension of half a t square is also l. So we can say that कि in dimension LHS is equal to RHS, dimension in dimension LHS is equal to RHS. Hence the given physical relation is dimensionally correct. The given physical relation is dimensionally correct because the dimension of each and every term
should be equal, so we can say that the given physical relation is dimensionally correct। ठीक है, तो आज इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।